को अस्सलाम वालेकुम। बचूंगड़े आ गए हैं। मलीहा भी पहुंच गई है, सिद्दीक भी। नाफिया नहीं आई है क्योंकि वो अपने फिर एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, उसका एग्ज़ाम ही ख़त्म नहीं होता, तो शायद वो कल आ जाए। लेकिन अभी सिद्दीक कह रहा था कि चलो कुछ बनाते हैं। मुझे पता नहीं है, मेरी ब्लड जो है काफ़ी लो होता है, उसकी वजह से मुझे सारी बॉडी शेक हो रही है आज। बस आज के दिन तो खैर मैंने फ्राइडे का ही दिन है, बच्चे आ गए हैं सब। इससे पहले व्लॉग तो मैंने कमेंट का जवाब दिया था, वो पोस्ट कर दिया। और अभी मैं चिकन धो रही हूँ और फिर इनके साथ कुकिंग करती हूँ। ये हाफ एंड हाफ, मी एंड सिड, Half and half. both. Chips and rice, please. Half and half. चिप्स एंड राइस। We're just moving things around. ये तो मैंने Oh चिकन yeah, डाल here we दिया, go. There we go. little bit oil में, And butter. garlic and garlic. butter and onion। And we need और to. मिस्टर And then शेफ सिद्दीक, इसने बाल भी काटे हुए हैं तो डिफरेंट लग रहा है। bal cutting. You know what's बाल काटे हुए? Yeah, I cut my hair. Yeah, you cut your I hair. understand it. I can't speak it. You can't speak it. Yeah. unfortunately. बहुत ही ज़्यादा वेट लूज किया है इसने। Been going to the gym. ये जिम में भी जा रहा है पर इस रमज़ान में, बिकॉज ऑफ रमज़ान, What? No. बिकॉज ऑफ फास्टिंग। No, I'm trying to get the summer bod. Okay. Release. And some of you said that Siddiq is very funny when he's around his mom. No, Siddiq is always funny. It's not only. I'm not funny. Am I? I mean, you always That's the funny. one right there. Huh? That's the one right there, the funny one. She's pulling down her top. मलीहा की तबीयत ठीक नहीं है। सिद्धू, you come after 4-5 days, isn't Yeah, it? I'm just happy to be here. Yeah, सिद्दीक हैप्पी होता है जब ये अपनी मामा के साथ होता है, बात होता है। He love me. Watching my mum. Well, I should hope. The Well, I love you. You just Your mom. love me because I'm your mama. You just love me the way I am. him all the time. What does that mean? Obviously, I mean, why you love me so much? because you're my mum. But you do everything for him. But loads of people, they got their mother and they don't love them. They say that, oh, okay, she's our mom. Who doesn't love their mama? Everybody love their mama. No, loads of people. Nah, Okay, everybody comment love their below that everyone loves Everyone their love their mama. mama. Majority of Everybody people love their mama. You sure? Every Because I think they just respect their No. mama. They don't Everybody love love their mama. Yeah. Every single person on the planet. Loads of people comment, they say to me, Siddiq, that Especially if you're, your children love especially you so if you're brown Definitely. or black or Ethnic minority. a lot of white people don't love their mama. much. No, they do love their mamas. I know. That's what I'm saying. Everybody loves their mama. Glenn's daughter love her. Who the hell is Glenn? You know the neighbor, Glenn and Ian. Hey, you tell my father. Welsh people don't count. Yeah, Welsh people love. Oh, my Welsh people God. are cultural. Yeah. I'm talking about English people Yeah. or Americans. American don't love, I think. You know, like Americans are like- basically English. But I find that Everybody loves their mother. mother. Let's be real. The general consensus. Okay, comment is that you below. love your mama. that Everybody everyone loves- love their mother. Oh, Obviously. Does love oh, their my Who doesn't children, love their mother? my children crazy about me just because Can I tell you, sometimes Mama, I feel like it, that you guys are crazy about me. Loads of people have Everybody daddy loves their issues, but not many people have mama issues. Yeah. Only Eminem. Yeah. Eminem's the only person who don't love his mom. He the only- Is it? He don't? Yeah. Oh my God. All my life I love my daddy. Oh, yeah. मेरी बचूंगड़ी आ गई, मेरी हना. No. You know my Hannah, when she's home, it don't feel like it's a child home. She's so sober. She's so. Sober. Oh Yeah, my she- God, she's not- I just she's not love like my Hannah. alcohol, I just it's love my Hannah. I don't know, but you know why she close to my heart too much? Because number one, she got all the habit like him, 100%. His face is mixed. Wait. Mixed Dina and Sid. Number one, he is my son's kid. Nah, Yeah, there you I go. love Kibi. Number one. I love Kibi, Maliha. This is a big crime. This is bad. I just, you know why I most of the time I He is defend my Hannah. favorite child. No, most of the time I defend Hannah, and the reason is because she remind me Siddiq childhood, because Siddiq used to be quiet, sensible, like, you know, very polite person, like
You know, he was a child. So, Maliha, you was bully. You were bully. Okay. And you know this one. And oh my God, sometimes she make me cry, Sidik. Like, you know, the way she come, the way she give me her card. And even, you know, it was such a big effort that she wrote Eid Mubarak in Arabic. And, you know, I saw this card yesterday. Honestly, I'm not lying. So mashallah, you're I'm gonna not lying. It was tears in my eyes when I saw jinx it. this Mashallah, you're gonna card. jinx it, man. Yeah, mashallah, mashallah. Sorry, Mashallah. we don't want to And give you guys evil eyes. Start off by. where's my card? please? Sometimes I don't want to post these things. There's a loads of 100 and 1,000 memories with these kids, hold on, wait. with all my kids. But sometimes I just don't want to post these things because I don't want any evil eyes. I don't want any nazar. I don't want my grandchildren ever hate me or ever don't like me because I think, you know, they're my life. I used to say my 5 children are my life, but There's a cook in the chicken. now they take over. They take over. There's a cook in the kitchen. There's no cooking. She's holding the camera. I love you so much. Okay guys, so now my son is cooking and inshallah I'm gonna give him company because I know, you know, sometime the camera not supposed to be on. So I want to enjoy with him and inshallah see you soon. अस्सलाम वालेकुम, मैं मलीहा जान के साथ आई हूँ. मलीहा रात को आई थी and मेरे हाथ से फिर कैमरा मूव हो रहा है. तो मलीहा आई थी कल रात रहने वीकेंड पे. मलीहा सिद्दीक चला गया क्योंकि उसने बीवी के साथ कहीं जाना था. मलिया मुझे लेके आई है फिश एंड चिप खिलाने. मेरे घर के पास बहुत प्यारा बीच है, मैं वो भी आपको दिखा दूंगी. मेरी मलो कितनी प्यारी लगती है ग्लासेस में. मैं इसको कहती हूँ ग्लासेस पहना करो. शी लुक लाइक अ प्रॉपर बैरिस्टर. ऐसे तो बैरिस्टर है लेकिन ग्लासेस में कुछ ज्यादा बैरिस्टर लगती है. तो चले अब हम जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, फिश एंड चिप खाते हैं और आप लोगों को अपना प्यारा ये सीन दिखाती हूँ. मेरे घर के पास कितनी, बिल्कुल मेरे घर से 2 मिनट के फासले पे, 2 मिनट की ड्राइव है. तो ये प्यारा सा बीच है हमारा. ये जो बीच है ये ऐसे पैक होता है ना, आपको क्या बताऊं. सर्दी गर्मी हर वक्त, बारिश हो स्नो हो, पर यहाँ ये बिजी होता है. पर ये 150 ईयर पुराना बीच है लेकिन अब कौंसिल कह रही है कि हम इसको हटाएंगे. तो बहुत बड़ी बड़ी पिटिशन चल रही है इसके ऊपर. मैंने स्कार्फ कैसे पहना है और मैं लिटरली पजामे में आई हूँ. आपको दिखाऊं, मैं पजामे में आई हूँ और मलीहा ने इतना गंदा कोई कोट स्टोर से उठाया है, पहना है. लोग इतने बन ठन के यहाँ आते हैं क्योंकि ये बहुत ही जैसे यहाँ फन फेयर भी है, बहुत ज़्यादा खाने की शॉप्स भी हैं, एलडी भी है. और ये हमारा बीच है, बहुत ही ज़बरदस्त बीच है. और मैं और मलीहा हम यहाँ आ गए, बैठ गए हैं, फिश एंड चिप ले लिया. ब्लेस दिस शॉप ओनर. ये हमारे लिए अलग कढ़ाई इसने रखी होती है और जब हम ऑर्डर देते हैं तो ये हमारे लिए ये चिप्स बिल्कुल सेपरेट फ्राई करता है और फिश हमारे लिए सेपरेट कर लेता है. तो सालों से हम इसके पास आते हैं और ये हमारे लिए कहते हैं मैं तुम लोगों के लिए अलग कढ़ाई रखता हूँ क्योंकि कहते हैं मेरे जो मीट की फिश और मीट में सारा एक फ्राई कर दो. चिप्स तो ये अलग फ्राई करता है लेकिन हमारे लिए ये फिश अलग कर लेता है. क्यों बोली? Come on, eat your fish and chip. Come on. There's no fish and chips. Yeah. नाफिया का The weekend, so basically on the 25th. अलई हम खा रहे हैं और नाफिया बातें कर रही है. चलो अपने खा लिए. इजी होता है ये जगह और इससे हम ये अपनी लेते हैं. ये हमारा बीच है, समंदर ही समंदर. ये देखिए कितना प्यारा बीच है, मीलों तक है. और ये थीम पार्क है, सारी शॉप्स है आइसक्रीम के ऐसे. ये मेरी मलो है, ये मेरा शहजादा है. वी लिटरली लिव इन हॉलीडे प्लेस और हम ये जगह छोड़ के बाहर जगहों पे जाते हैं. विच आइसक्रीम यू हैविंग? Birthday cake and birthday cake. 2 birthday cakes. 2 birthday cakes. Yeah, 2 birthday cake ice cream. और वहाँ भी सारे आइसक्रीम.
I'm the bubblegum one. Caleb love birthday cake and me coconut. So अगर आप लोगों को फन करना है तो मेरे घर के सामने आए, बस दूर ना जाएं। ले लिया ये, मली ने ले लिया ये, मेरा है ये कोकोनट, कैलब का ये। इस सर्दी में पागल लोग हम आइसक्रीम खा रहे हैं। ऐसे ही अप्रैल का एंड आता है, ये बीच ऐसे बिजी हो जाता है। हालांकि अभी काफ़ी सर्दी है, लेकिन और जब मेरे एटिक में आप लोग खड़े होते हैं ना तो विंडो से ये बीच नज़र आता है। ये इतना प्यारा, ये ऐसे इसके साथ कार पार्क, ये LDB बन गया है, रिटेल शॉप बन रहे हैं। ये काफ़ी प्यारा बिजी इलाका है, लेकिन मेरा घर बिल्कुल एंड में जाके है। तो मैं और मलीहा आ गए हैं। I didn't buy any flower. आ गए हैं डिनर पे, लंच पे एक्चुअली। साइमा ने लंच अरेंज किया और हम दोनों फूल लाना भूल गए हैं। So what we should do? You didn't tell me. That's why I was keep asking you what kind of dinner is it. Just say we were late. Innit? Saima, we were late and we forget to bring you flowers. पता नहीं, मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि लास्ट मिनट में मुझे कार्ड और फ्लावर भूल जाते हैं। तो अब आए हैं, साइमा ने शादी के बाद पहला लंच किया और मैं तो फ्लावर भूल आई हूँ, मलीहा भी भूल आई। चले चलते हैं अंदर। तो प्रिंसेस आ रही है, प्रिंसेस, my little princess. You know, I'm always lucky in that. I've counted my lucky stars last night as well. हाँ? And I like your cousin. सब आगे आगे जा रहे हैं और हम पीछे पीछे। So if anything changes, no. Oh, I'm going south of France, Monaco, Nice, for Sabia's birthday. Yeah, so it's nice. And then hopefully, inshallah, Malaysia with my husband's birthday. Which is in August. You should take your mummy with you as well because it's my Your birthday mum's too. been Malaysia, Yeah. but I am going to take. I told you I'm taking you somewhere else. When you start going on holiday, you just want to go. I don't want to go Malaysia. Yeah, बहुत मजा आ रहा है। ये वो अच्छा लगा। बड़ी बिजी है खाने में। ये पूरा सैलड का भी ट्रे खा चुकी है वैसे। और अब चीज केक आ गया है, सेब वगैरह का क्रम्बल पाई है कि क्या है, वो आ गई है। हमेशा फिर जुदाई होती है। मेरी बहुत बड़ी भी है। मलीहा ने कहा कि मैं कल मशीन निकालूंगी। मशीन असल में बेसमेंट में यहाँ पड़ी हुई है। ये हमारा बेसमेंट है, यहाँ पे सारे किस्म की मशीनें हम रखते हैं, बिल्डिंग से लेके पेंट तक सब कुछ। तो ये इतनी ग्रास बड़ी हुई है, ये आपको दिखा दूँ। मेरी इतनी खूबसूरत ऑस्ट्रेलियन ग्रास है, पर वो बड़ी हुई है और ख़ान नहीं है। और ख़ान इतना कंजूस है कि मेरे गार्डनर को हमेशा भगा देता है। तो अच्छा ख़ासा मेरा गार्डनर है। हाय, मैं हाथ भी ऊपर नहीं कर सकती हूँ। तो गार्डनर को भगा देता है, कहता है ये हर रोज़ आया होता है। वो बेचारा आता है इतने बड़े गार्डन का, वो 70 पाउंड लेके तो वो ये ग्रास काटता है, लेकिन वो अपने फ़ायदे के लिए बेचारा हर वीक आ जाता है। ख़ान को अब ये गुस्सा आता है कि हर वीक क्यों नाज़िल हो जाता है। और एक तो पता नहीं उसको क्या कमीज़ से दुश्मनी है कि वो कमीज़ पहन के नहीं आता। बस ख़ान को उसको वो कमीज़ ना पहनना है। भी मेरी तरह मोटा है बेचारा, मेरी तरह हेल्दी भी है, मोटा है, जो भी कह दो। तो एक तो मेरी तरह बेचारा हेल्दी भी है और दूसरा कमीज़ नहीं पहनता। और ख़ान को वो जहर लगता है। मैं इस अपनी शर्ट के पीछे फिर के मैं थक गई और ये इधर गार्डन में पड़ा है। तो ये गार्डन के ग्रास का इतना बुरा हाल हुआ है, आप लोगों को क्या दिखाऊं। ये सिर्फ ये ख़ान 1 महीने पहले ख़ान ने इसको ट्रिम किया था, ये सिर्फ महीने का है, देख लें। ये यहाँ भी वीड सारे दोबारा आ गए हैं।
अजीब सा ही मुल्क है, बहुत ही ज़रखेज़ मुल्क है। बस ज़रा सा छोड़ दो। ये देखें, ये सारी चीज़ें उसने ये सारा ऐसे फ़र्श साफ़ किया था उसने, ये रेड, अब इसमें भी सब वीट निकल आए हैं। तो अब बेचारा फिर आएगा। तो खैर अभी तो मैं जाने वाली हूँ, फिर उससे पहले साथ आएंगे, 1 महीना पाकिस्तान में गुजार के इंशाल्लाह आएंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हमने जगह ली है सेंटर के लिए और ऑर्फन बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो उसमें इंशाल्लाह थोड़ा सा काम करने वाला है जो कि मैं और ख़ान अपनी मौजूदगी में करेंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह फिर ये सारा ये फिर बीट और ये फिलर और ये ग्रास कटिंग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो मेरी अम्मी कहती थी कि जब भी घर में दाखिल हो, चाहे बंदा हो या बंदा ना हो, सलाम किया करो। तो मैं सलाम करती हूँ। मेरे फ्लावर को देखें, जो रोज़ा इफ्तार में मेरे फ्रेंड्स लेके आए थे, अभी तक मैं इनकी लुक आफ्टर करती हूँ, अभी तक हैं, यानी कि तकरीबन 20 दिनों से ज़्यादा हो गए। ईद की डेकोरेशन भी अभी हमने हटाई नहीं है, मुझे अच्छी लगती है। चले हाय, मैंने आते ही अभी असर की नमाज का भी टाइम होने वाला है। बहुत इंजॉय किया, फ्रेंड्स से बातें की, सारी ज़ेब की फैमिली थी। ज़ेब साइमा की माँ का नाम है, तो उसकी फैमिली थी, साइमा की सारे फ्रेंड्स एक दफ़ा फिर इकट्ठे हुए तो बहुत अच्छा लगा। हालांकि सर में मेरा सुबह बहुत दर्द था। मैंने कहा मैंने मलीहा को हाँ तो कर दी, क्योंकि साइमा को मैं बहुत प्यार करती हूँ। साइमा की वजह से मैंने कहा मैंने हाँ कर दिया, पर मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था बेड से उठने के लिए, लेकिन मैं चली गई थी। तो अब मैंने कहा चलो अपने लिए कॉफ़ी का कप बनाती हूँ। खाना तो कल का इतना बचा कुचा पड़ा हुआ है, और मैं तो वैसे भी साइमा के डिनर में इतना खाई हूँ कि मेरा दिल नहीं कर रहा। अपने लिए कॉफ़ी बनाती हूँ, फिर आप लोगों के साथ थोड़ी सी गपशप लगाती हूँ। ये तो मलीहा ने बेचारी नहीं जाती हुई सारे कल रात के बर्तन धो लिए थे, क्योंकि कल हमने लेट खाना खाया, तो मैंने ट्रे ऐसे ही ऊपर रख दी थी। मैंने कहा मलीहा कोई बात नहीं, सीढ़ियों के साथ रख के कल धो लेंगे। तो सुबह तो हमने नाश्ता नहीं किया, वही कल वाले बर्तन मलीहा ने धो लिए थे। तो चले मैं इनको संभालती हूँ, फिर कॉफ़ी बनाती हूँ थोड़ा सा, फिर आप लोगों के साथ गपशप लगाती हूँ। मैंने ये कुर्ता पहना हुआ है, आपको दिखा दूँ। मैं हर रोज़ आपको अपने कुर्ते दिखाती हूँ, बहुत प्यारा कुर्ता है। ये भी काड़ी का है, साथ में मैंने शलवार दूसरे कमीज़ की पहन ली है। तो ये मेरा कॉफ़ी का कप है, मग है, जिसको मैं इलेक्ट्रिक है, चार्जेबल है, मैं इसमें अपनी कॉफ़ी बनाती हूँ। आप लोगों को साथ साथ टिकटॉक की चीज़ें भी दिखा दूँगी। मैंने एक मिनी चॉपर लिया है, सिर्फ 5 पाउंड का, इतना ज़बरदस्त ये काम करता है, ये देखिए। तो अगर ये चीज़ें लेनी हो तो टिकटॉक पे मेरे पेज को फॉलो करो, मैं इन चीज़ों को लेके हर वक्त रिव्यू करती हूँ, तो आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाता है। और चल मैं इनको रख लूँ और फिर अपने लिए कॉफ़ी बनाती हूँ। थोड़ी सी बिरयानी भी पड़ी हुई है और थोड़ी सी चिकन कढ़ाई भी पड़ी हुई है, मेरे लिए वो काफ़ी है। वैसे ये भी मैं टिकटॉक से लेके आई हूँ। ये ऐसे माइक्रो किस्म के कपड़े हैं, जो एक कपड़ा मैं मंथ का यूज़ करती हूँ, और ये बहुत पानी ऑब्जर्व करता है। तो ये भी अगर आपने लेने हो तो मेरे टिकटॉक के पेज पे विज़िट करो, आ जाओ। चले आ जाए, मैं कॉफ़ी बना लूँ। अपने कप पे कॉफ़ी बनाती हूँ। मुझे आजकल ये कप बहुत अच्छा लगता है, ये ऐसे ये देखिए ऐसे ऑन हो जाता है। ये मैंने चार्ज किया, वीक हो गया, और 1 वीक मैं लगातार इसमें कॉफ़ी पी रही हूँ, पर कुछ भी माशाल्लाह इसका चार्ज ख़त्म नहीं होता। मेरी कॉफ़ी भी बस ख़त्म होने वाली है। हाँ बस आखिरी कॉफ़ी की ख़त्म हो गई है, और मेरा कॉफ़ी मेट भी मैं मिल्क से एलर्जिक हूँ, तो मैं कॉफ़ी मेट पीती हूँ। ये भी बस ख़त्म है। लड़कियों, मेरी दोनों चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब मैंने वैसे ऐसी कंजूसी कर दी, कंजूसी तो नहीं, पर असल में क्या हुआ था कि मैं गई थी, LD गई थी, और मैं कह रही थी कि ले लूँ कि नहीं लूँ, क्योंकि मुझे था कि जल्दी से बस थोड़ा सा ड्रिंक और जंक थोड़ी ज़रूरी चीज़ें कर लेनी थी। 1-2 चीज़ें उठाई और मैं निकल आई, नहीं तो मैं ये ले लेती। ये देखिए, ये अब ऑन कर दिया, ये खुद ही मिक्स हो जाएगा। आपको आवाज़ आ रही है?
बस ये इस तरह का कॉफ़ी का मग है। ये भी ओनली 6 पाउंड का लिया है और बहुत ज़बरदस्त है। मैं बाहर भी, क्योंकि आपको पता है बहुत कॉफ़ी मेरे फेवरेट कॉफ़ी शॉप बाइकआउट लिस्ट में है, तो मैं बस ये कॉफ़ी घर से बना के तो अपने साथ ले जाती हूँ। मुझे बाहर कॉफ़ी ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं होती। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ एक और कमेंट शेयर करूँगी। तो मैं हर ब्लॉग में कोशिश करूँगी कि आप लोगों का कोई एक सवाल जो मुझे अच्छा लगे, मुझे कुछ अच्छा लगेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं हर कमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि कोई ऐसा कमेंट होगा जो कि जिससे कि फ़ायदा हो सकता है औरों को लिए भी, तो उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो एक कमेंट आया है, बल्कि एक दफ़ा नहीं आया, कई दफ़ा आया, लेकिन मैंने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया था कि मैंने कहा ये मामला तो हर किसी के घर में है, तो कोई ऑफेंड ना हो जाए, तो मैंने पोस्ट नहीं किया उसका जवाब। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं उसका जवाब पोस्ट कर दूँ, क्योंकि इस बच्ची ने भी पूछा है कि अपने एक्सपीरियंस से जवाब देना, मुझे रिप्लाई करना कि ऐसा क्यों होता है। तो ज़रूरी नहीं है, मैं मशीन में कपड़े भी डाल दिए, ज़रूरी नहीं है कि मेरा हर सवाल ठीक होगा और हर जवाब ठीक होगा, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप अपने लिहाज से, अपने अक्ल के लिहाज से भी सोच लिया करें, और आपको जो सही लगे आप उस तरीके से अपने आप को सवाल जवाब दिया करें। एनीवे, इस बच्ची ने पूछा है, मेरे मोबाइल में उसकी डिटेल है, लेकिन इसने मैं मोबाइल में देख के उसका नाम शेयर कर लूँगी आप लोगों के साथ, मुझे भी याद नहीं है। फैमिली, कुछ इस तरह का सवाल इसने किया है कि मामा फैमिली क्यों, फैमिली हमें परेशान कर देती है, हमें बहुत ज़्यादा दुख दे देती है, जो ऐसी बातें कर लेती है जिसको हम भूल ना सके, तो ऐसे फैमिली मेम्बर को क्या आप समझते हो कि हमें उनकी गलतियों को भूल करके उनको अपनाना चाहिए, उनको माफ़ कर देना चाहिए, या हम उनके साथ कतई ताल्लुक़ रखें? तो इस बच्ची के लिए उसने साथ में ये भी लिखा है कि कितनी दफ़ा मुझे मेरी फैमिली ने हर्ट कर दिया है। अब उसने ये नहीं बताया कि फैमिली कौन सी फैमिली, उसकी अपनी सिबलिंग या उसके ससुराल वाले। ये अगर बता देती तो शायद मैं ज़्यादा अच्छा जवाब दे देती, लेकिन उसने सिर्फ फैमिली का कहा है। तो उसने, अगर उसका इशारा अपने ससुराल वालों की तरफ से हो तो उनके लिए तो मेरा मशवरा ये है कि अपने खावन को कभी भी मना ना करो कि वो अपने माँ बाप के साथ टाई ख़त्म करे, तोड़ दे। ये मेरे कपड़े भी हैं, ये भी लैंड से उठा लिए, ये भी हैंग कर दूँ। तो मेरे ख़्याल में कि अपने खावन को मना ना करे कि वो अपने बहन भाइयों के साथ या माँ बाप के साथ ताल्लुक़ तोड़ दे, चाहे कितना भी कुछ बुरा क्यों ना हो जाए। मैं आप लोगों को ये एडवाइस दूंगी कि एज़ अ डॉटर समझ के, क्योंकि यही एडवाइस मैं अपनी बेटियों को भी देती हूँ, अपनी बहुओं को भी देती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोग अपने स्पाउस को, चाहे वो आपके खावंद हो चाहे आपकी बीवियाँ हो, उनको ना मना करे कि वो अपने माँ बाप के साथ और बहन भाइयों के साथ ताल्लुक़ तोड़ दे। लेकिन अगर आपसे नहीं हो सकता और आप खुद अपने ससुराल में, ये उन लोगों के लिए है, अगर ये वो जवाब है, अगर इस बच्ची ने अपने ससुराल के बारे में कहा हो तो ये मेरा जवाब है ससुराल वाली फैमिली के लिए कि अगर आपकी फैमिली ससुराल से आप तंग है और आप कहते हैं कि मैं उनको माफ़ भी नहीं करना चाहती हूँ और कैसे मैं उनके साथ वापस गेट ऑन हो जाऊँ, तो ये उसके लिए मेरा जवाब है कि अगर आपका इशारा ससुराल के लिए है तो अपनी बीवियों को और अपने खामदों को मना ना करे कि वो अपने बहन भाइयों को, माँ बाप को छोड़ दे। और आपने अगर नहीं रखना तो आपकी मर्ज़ी है, आप बेशक उनको नहीं माफ़ करना चाहते या उन्होंने कुछ ऐसा बुरा आपके साथ किया है कि आप समझते हैं कि मुझे इनसे और दुख मिल जाएगा और तकलीफ़ मिल जाएगी, मेरे मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, मेरी ज़िंदगी के लिए अच्छा नहीं है, या इनकी मेल मिलाप से मेरे रिश्तों में
क्या बताऊं कि मेरे रिश्तों में फूट पड़ती है या मेरी फैमिली डिस्टर्ब होती है, तो आप बेशक ना करें। ये मेरा सिर्फ मशवरा है आपसे। इस्लाम ये कहता है कि आप कतई ताल्लुक़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि जो इंसान आपको दुख दे और आपको उससे ख़तरा हो तो आप सलाम दुआ ख़त्म ना करो, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से उनके साथ दूरियां इख्तियार कर लो। जहाँ तक मुझे पता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, क्योंकि आजकल आपको पता है कुछ हदीस ज़ईफ़ होते हैं, कुछ सही होते हैं, पर मैंने जहाँ तक सुना है, प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि सही है कि नहीं। तो अगर आपको लगता है कि ये इंसान मुझे ज़हनी परेशानी, मुझे डसने की कोशिश कर रहा है, तो दूरियां इख्तियार कर दो।